टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर हो। आज की खबरों की शुरुआत जो है सीएम भगवंत मान से करते हैं। चुनावी रैलियों का दौर पंजाब में पूर्ण रूप के साथ जोरों पर है और वैसे में सीएम भगवंत मान भी अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गालां किहनूं कढदे आ? ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3.25 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੀਮ, ਈਨਾ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਹਸਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਕਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਬਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਰੋਲੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੇਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ LOP ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 22 ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਤੇ 22 ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 27 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ 27 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 27 ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 32 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਲਾ लो, 32 ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 37 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈ 37 ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 42 ਚ नहीं होना। 42 ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 47। अब बात क्योंकि पंजाब की राजनीति की कर रहे हैं, तो अब बात जो है हम कर लेते हैं कि किस तरीके के साथ जो है तकड़ी को लेकर, यानी कि अकाली दल की जो तकड़ी चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी लगातार जो विवाद बना हुआ है। हालांकि दूसरे अकाली दल की तरफ जो उनसे बागी धड़ा हुआ था, उन्होंने दावा ठोका था। एक और शख्स की तरफ से दावा ठोका गया है, जिसके बाद उन्होंने इस चीज को लेकर कहा है कि अब ये जो तकड़ी है निशान को लेकर, और चुनाव आयोग ने उनकी जो पटिशन उसको भी एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। अब बात कर लेते सुनील जाखड़ जी। सुनील जाखड़ लगातार पंजाब सरकार को लेकर सवाल खड़े करें कि विपक्ष और विरोधी धर में है, तो वैसे भी लगातार सवाल खड़े करे। और चंडीगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैं सरकार के ऊपर जम के सवाल खड़े किए। नेता दे स्तंभ दे नाल इन्हां ने अपना मोढा लाया, पर क्योंकि कहंदे ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ਉਹ ਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੂਈ ਮੁਈ ਹੈ, ਵਰਡ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ चंगी खासी उम्र ले बैठे हो, दोनों तो पता होना है। कहते जो शीशों के, कहना से चिनाई सेठ जो शीशे के महल में रहते हैं, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। आ जेड़े जो कुछ तुसी कर रहे हो पंजाब दे नाल, जो तुसी लुट मचाई है ते जो जहर दा बीज इत्थे बोझ रहे हो, निरा ही झूठ बोल बोल के। अज भी इत्थे आने तो पहला मैं जिहड़ी गल करके आया, इन्हां ने सारा एब्सोल्यूटली सिरे तो लैके आखिर तक झूठ ते झूठ बोली जांदे है। जिहड़ी सरकार दा काम सीगा, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ पहरा देने वास्ते तैयार बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं राजा वड़िंग की। तो राजा वड़िंग ने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित बयान दिया। राजा वड़िंग लंबे समय से अलग अलग विवादित बयानों को लेकर जो है चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहां तक बिठाया, केस भी चल रहा है सर कोर्ट में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश, मैं डिमांड करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि कृपया वो आप 3 काले कानून सस्पेंड जो किए हैं उनको वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी वो हमें दे दीजिए। आपको सुनाते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस की। आज उनके सभी एमएलए जो हैं गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे। इस गवर्नर से मुलाकात के बाद हमने खासतौर पर अशोक खोड़ा से बात की। उन्होंने क्या खास कहा ये आपको सुनाते हैं। रिटर्निंग अफसर ने एक बार नहीं 6 बार फैसला लिया कि ये वैलिड है। और जैसे परमवीर जी की वोट थी, वो वोट डलने के 2 घंटे बाद प्रोसीजर तो होता है कि जिस टाइम अगर आपको किसी पे शक है, किसी की लीक हुई है, आप उसकी वोट बैलेट पेपर से बाहर रखाएं, पहले वीडियो देखें, फिर चुनाव आयोग से परमिशन लें, तब वोट रिजेक्ट होती है। और पहले ही वोट बैलेट पेपर में वोट पढ़ ली हो और उसके बाद रिजेक्ट करके उसको निकालना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके के साथ जो विधायक चाहे शैली चौधरी है या बाकी कई और भी जो विधायक हैं जो जिनकी कहा जा रहा है क्रॉस वोट की गई है, वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा जो चीज़ें खुलकर नहीं बोल पाते, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, इस तरीके की बयानबाजियां इसके बारे में तो जो हमारे ऑथराइज एजेंट थे बीके हरिप्रसाद हुड्डा साहब वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अब आगे क्या रहेगा कांग्रेस का, क्योंकि अब आप लोगों ने खुला तो मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सतीश नांदल कह रहे हैं कि मैं तो हाई कोर्ट तक जाऊंगा। हम जनता में जाएंगे और बीजेपी ने जो अनैतिक रवैया अपनाया है, जो सत्ता बल के दम पर रिटर्निंग अफसर से 4 वोट रद्द कराई है, हम जनता को पूरी तरह से बताएंगे। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देख रहे थे TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।